کہ ایک مولانا کسی مجمع میں تقریر کرنے بیٹھ گئے، لیکن تقریر کرنے والا آنکھیں بند کر کے تقریر کر رہا تھا، ہم تو آنکھیں کھول کے کر رہے ہیں۔ آنکھیں بند رکھی تھی، جو آگے سامعین تھے انہوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب کی آنکھیں بند ہیں، ایک ایک اٹھ کے کھسکتا رہا۔ جب مولوی صاحب نے تقریر ختم کر کے آنکھیں کھولی تو سامنے ایک شخص بیٹھا تھا، تو اس نے اس سے کہا تو ایک ہی عاشق کے صادق رہ گیا؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں ہوں مائک والا، آپ کا مائک کی جان چھوڑیں میں اس کو لے کر جاؤں، تو ہمیں مائک والا نہیں بننا ہے۔ اگر آپ آئے ہیں اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، سکون کے ساتھ بیٹھیں اور بات سننے کی کوشش کریں۔ آج تو یہ چیزیں آ گئی ہیں، ایک طرف سے سہولت بھی ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ بڑی غفلت کا ذریعہ بھی ہے۔ کچھ لوگ جو مجالس کے اعداد ہیں وہ یہ سمیٹ کے لے گیا۔ آج تو بڑی دینداری اسی کو سمجھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے کو موبائل میں بیل بجتی ہے، اس نے اذان رکھی ہے، اس نے اقامت رکھی ہے، اس نے قرآن کی تلاوت رکھی ہے، اور لوگ کہتے ہیں بڑا دیندار ہے کیونکہ اس کا موبائل قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بڑا دیندار ہے اس کا موبائل اذان دے رہا ہے۔ اذان دینے کا حکم موبائل کو نہیں ہے، اذان دینے کا حکم موبائل والے کو ہے، سننے کا حکم موبائل کو نہیں ہے، سننے کا حکم موبائل والے کو ہے۔ آپ اتنا وقت وہاں سے نکال کر یہاں پہنچے ہیں تو آپ اطمینان کے ساتھ بات کو سنیں، جو بات آپ کو اچھی لگے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس کے اوپر پرکھیں، میری زندگی میں کیا کوتاہی تھی، کیا کمی تھی، اور میری کس کمی کی نشاندہی یہاں پہ ہوئی ہے، میں اس کمی کو پورا کرنے کی فکر کروں گا۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں ان پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمزدہ ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن تو وہ بے خوف ہی ہوں گے، قیامت کے دن تو وہ اطمینان ہی میں ہوں گے، لیکن وہ حضرات دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی اطمینان والی زندگی کے لمحات نصیب کرتے ہیں، اس لیے کہ الا ذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کریں، اور ایک حدیث کے اندر فرمایا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تصاحب الا مؤمن ولا تاکل طعامک الا التقی، وفی روایت ولا تاکل مالک الا التقی، تم دوستی کسی سے مت کرو مگر متقی پرہیزگار سے دوستی کرو۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس سے چاہیے کہ وہ دوستی لگانے سے پہلے وہ دیکھے کہ دوستی کس سے کر رہا ہے۔ اگر وہ نمازی کے ساتھ دوستی کرے گا نمازی بن جائے گا، اگر وہ قاری کے ساتھ دوستی کرے گا قرآن خواہ بن جائے گا، اگر وہ کسی نیک بندے کا دامن پکڑے گا تو وہ نیک بن جائے گا، اگر وہ شرابی کو دوست بنائے گا وہ شرابی بن جائے گا، وہ زانی کے ساتھ دوستی کرے گا تو ایک نمبر کا زانی بن جائے گا، وہ رشوت خور کو اپنا دوست بنائے گا تو ایک نمبر کا رشوت خور بن جائے گا۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند، نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ یوں تو دوستیاں ہوتی رہتی ہیں، انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھاتا ہے، اور قرآن کریم نے احادیث پاک میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
जब दोस्ती लगाओ तो मुत्तकी परहेजगार से, वला ताकुल तामका इल्ला तकी, तुम्हारा खाना ना खाए मगर मुत्तकी और परहेजगार। वला ताकुल मालका इल्ला तकी, अपना माल मुत्तकी परहेजगार लोगों के ऊपर सर्फ करो। वो जब तुम्हारा माल खाएंगे, तुम्हारे यहां खाना खाएंगे, उसके बाद वो अल्लाह को याद करेंगे, उसके बाद वो नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद वो तिलावत करेंगे, उसके बाद वो अल्लाह को याद करेंगे, उसके बाद वो अच्छे काम करेंगे। उन तमाम कामों में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाएगा। इसलिए फरमाया अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो। कुरान करीम में अल्लाह जल्ला शानू फरमाते हैं, जो दोस्तियां अगराज की बुनियाद पर होती हैं, दुनियावी अगराज और मकासद की बुनियाद पर होती है, अल अखिल्लाउ बादुहुम लिबादिन अदुवन इल्लल मुत्तकीन। कुरान साफ लफ्जों में कहता है क़यामत के दिन बाज दोस्त दोस्तों के दुश्मन हो जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन। परहेजगारों की दोस्ती मैशर के मैदान में भी नहीं टूटेगी, वो वहां भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे और मैशर के मैदान में बहुत सख्त हालात होंगे। वतरन्नासा सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। मुखातिब, आप लोगों को देखोगे कि उनके ऊपर नशा तारी है, वो तो मदहोश है, उनको तो एक दूसरे की कोई खबर ही नहीं है, उन पर नशा तारी नहीं होगा। वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह का अजाब ही बड़ा सख्त होगा, किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी। लेकिन कुरान वहां कहता है जिनकी दोस्तियां मुत्तकी परहेजगार अल्लाह की मोहब्बत में दोस्ती लगी होगी। ऐनल मुतहाब्बून फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले कहां हैं? हदीस में आता है एक जमात खड़ी होगी, वह हम कलीलुन, बहुत थोड़े होंगे। जो दोस्ती करो अल्लाह के लिए करो, किसी के साथ जो काम करना है वो अल्लाह के लिए करो। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब काम अल्लाह के लिए। किसी के साथ जो मामला करना है, दोस्ती करो तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ करो तो अल्लाह के लिए, मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए। अल्लाह के जो वली होते हैं, अल्लाह के वलियों ने आकर बिगड़ी हुई इंसानियत के अंदर वो मोहब्बत की आग जलाई है, जिससे उन्होंने नफरतों को, दीवारों को गिराकर आज औलिया अल्लाह का जो तारुफ करवाया जा रहा है वो बहुत गलत तारुफ है। मैं एक मर्तबा कहीं जा रहा था तो एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, वो कह रहे थे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह इतने बड़े वली थे, इतने बड़े वली थे, इतने बड़े वली थे, यानी आज हम थर्मामीटर लेकर वलियों को नापते हैं कौन सा कितना बड़ा था। तो उनका वो इतने बड़े थे कि उनके सर के ऊपर से कोई परिंदा अगर उड़ता था वो भी जल के राख हो जाता था। ये वलियों का तारुफ है, जब उनके सर से परिंदा उड़ता था वो जल के राख हो जाता था। अल्लाह के वली मखलूक को जलाने के लिए आए। और आप पढ़ें हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब फज़ाइल आमाल व हिकायात सहाबा का मुताला कीजिए। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ते और वो इस तरह सुकून के साथ क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, वो इतने पुरसुकून नमाज अदा करते हैं कि परिंदे उनको सूखा हुआ दरख्त समझकर सर के ऊपर बैठ जाते हैं। वहां पर परिंदा जला नहीं और यहां परिंदे जल गए। ये गलत तारुफ है जो अहलुल्लाह का गलत तारुफ करवाया गया। अहलुल्लाह ने आकर एक तरफ तो लोगों के दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उजागर किया, उन्होंने इंसानों के कुलूब के ऊपर मेहनत की और दिलों को बनाने की कोशिश की।
उस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत, उस दिल के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, औलिया अल्लाह जिनका ताल्लुक अल्लाह के साथ कामिल दर्जे का ताल्लुक। और हदीस पाक में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा फराइज के जरिए फिर फराइज के साथ में नवाफिल के जरिए मेरा तकर्रुब हासिल करता है, मेरे करीब आना चाहता है, मेरा कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है, वो मेरे इतने करीब हो जाता है कि मैं उसके वो आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। यानी अल्लाह की मायत खासा नसीब हो जाती है। एक है मायत आमा और एक है मायत खासा। मायत आमा के लिए तो ईमान भी शर्त नहीं है, और मायत खासा अल्लाह जल्ला शानू अपने खास बंदों को नसीब करते हैं। और अल्लाह के खास बंदों का वो हिस्सा होता है जो फराइज, नवाफिल, तिलावत, इसके जरिए वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह जल्ला शानू एक मकाम वो आता है जिस मकाम पर अल्लाह ताला जल्ला शानू फरमाते हैं, मैं उनकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखते हैं, मैं उनके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनते हैं, मैं उनकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलते हैं। यानी अल्लाह ताला की मायत खासा नसीब हो जाती है, फिर अल्लाह ताला उसके जरिए इनकी हिफाजत करते हैं। उलमा ने लिखा है, अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी, हमारे अकाबरीन में बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है। अल्लाह ताला ने कुरान के उलूम के ऊपर बड़ी महारत उनको बख्शी थी। और उनके हालात में लिखा है, एक शख्स ने अपने बाग में से संतरे उतारे और एक टोकरा हदियतन वो हजरत की खिदमत में पेश कर दिया। तो हजरत ने देखते ही फरमाया, ये मेरे इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, इनको उठाओ और ले जाओ। तो उन्होंने कहा, हजरत चोरी करके नहीं लाए, जिस शख्स के घर में मैं काम करता हूं उस मालिक ने अपने बाग में से उतार कर दिए हैं। ये नाजायज पैसे से हासिल नहीं किए, किसी गलत तरीके से हासिल नहीं किए हैं, ये मालिक ने खुद अपने बाग से उतारे और आपके लिए हदियतन भेजा है। उन्होंने फरमाया, मुझे मालूम है, लेकिन जब इस बाग को पानी दिया जा रहा था उस वक्त हमसाये की बारी थी, लेकिन चोरी से रात को आपने इसमें पानी लगा दिया था, तो इसके वो मुश्तबा होने की बू मुझे आ रही है। इसी को फरमाया, मैं आंख बन जाता हूं जिससे वो देखते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने एक शख्स आए तो उन्होंने फरमाया कि जिना करके आ रहे हैं, क्योंकि वो बदनिगाही में मुब्तला हो गए थे। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह जब कोई वुज़ू करता था तो नाली में बहते हुए पानी में वो पहचान लेते थे कि ये कौन सा गुनाह इसमें धुल के जा रहा है, ये जिना का गुनाह है, ये शिर्क का गुनाह है, ये कोई और मासियत है। तो इमाम साहब को इसका भी पता चल जाता था। ये था कि मैं उनकी वो आंख बन जाता हूं जिस आंख से वो देखता है, मैं उनकी वो जुबान बन जाता हूं जिस जुबान से वो बोलता है। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुसूसियात थी, जो अल्लाह ताला ने उनको जो मौजज़ात दिए थे, वो करामात की शक्ल में अल्लाह ताला ने इस उम्मत के उलमा, इस उम्मत के सुलहा, इस उम्मत के नेकोकारों के अंदर अल्लाह ताला ने उनको वदीयत कर दिया। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर में तशरीफ ले गए। वो सहाबी रसूल वो निकले और उन्होंने जाकर कोई बकरी खरीदना चाहा कि वो बकरी को ज़बा करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करें, लेकिन उनको बकरी नहीं मिली। वापस जब आते हैं तो एक हमसाये से एक बकरी खरीदते हैं, उस बकरी की कीमत अदा की, फिर उसको ज़बा किया। ज़बा करने के बाद उसको पकाकर जो इन दस्तरखान पर सामने लाकर रखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बोटी उठाई और दाने अक्तस में रखी और फौरन वापस
निकाल दी और फरमाया ये गोश्त का टुकड़ा मुझे कह रहा है मुझे इस्तेमाल ना करना, ये बकरी बगैर मालिक की इजाजत के ज़बह हो गई है। ये खसूसियत थी हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक की, जहां वो मीठा खट्टा तुर्श यानी ये जायके मालूम करती थी, वहां हलाल और हराम की तमीज भी अल्लाह जल्ला शानू ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक के अंदर रखी थी। इसीलिए फरमाया सहाबाए किराम को अय्युकुम मिसली, तुम में से मेरा मुकाबला कौन कर सकता है, मुझ जैसा कौन हो सकता है। जब सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने सौम विसाल रखना चाहा और जब वो बेहोश होकर गिरे और वो सौम विसाल नहीं रख पाए तो हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में से मुझ जैसा कौन हो सकता है। अभी तो युतइमुनी रब्बी व युस्कीनी, मैं तो रात इस हाल में गुजारता हूं मेरा रब मुझे खिला भी देता है, मेरा रब मुझे पिला भी देता है। यानी वो कुर्ब, वो नबी के वास्ते से अल्लाह ताला इस उम्मत के उलमा, इस उम्मत के सुलहा, इस उम्मत के बुजुर्गों को अल्लाह ताला अपने जिक्र, तिलावत, नवाफिल, फराइज का एहतमाम, सबसे पहले फराइज का एहतमाम, उसमें नमाज भी है, उसमें रोजा भी है, उसमें फर्ज ज़कात का हुक्म भी है, उसमें हज का हुक्म भी है। अगर हज फर्ज है तो हज की अदायगी, ज़कात फर्ज है तो ज़कात की अदायगी, नमाज फर्ज है तो नमाज की अदायगी, यानी फराइज को अव्वलीन दर्जा। आज लोग देखते हैं जिसके भी मैले कुचैले कपड़े हो कहते हैं ये पहुंचा हुआ है, ये पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। जिसने आधा जिस्म नंगा किया वो आधा वली, जिसने सारा नंगा कर लिया वो पक्का वली। आज तो विलायत का तारुफ पता नहीं किस किस उन्वान से और किन किन अल्फाज के साथ विलायत को समझाया जा रहा है ना मालूम। विलायत में जो करामात हैं उनको किस किस अंदाज के साथ लोगों के सामने उनको बयान किया जाता है। सहाबाए किराम की करामात हैं, ताबईन की करामात हैं, बुजुर्गान दीन की करामात हैं, और जो असल चीज है उसको कोई करामत समझता ही नहीं। असलन फराइज का एहतमाम, सुन्नतों की पाबंदी, और सुन्नतों में भी अक्सर लोग ये समझते हैं शायद सुन्नत के मुताबिक खाना खा लेना ये तो है ही है, इसका तो हुक्म है। सुन्नत के मुताबिक सोना, सुन्नत के मुताबिक बैठना, सुन्नत के मुताबिक कपड़ा पहनना, सुन्नत के मुताबिक जूता पहनना, सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में दाखिल होना, सुन्नत के मुताबिक बैतुल खला जाना, ये तो जिंदगी के वो लवाजिमात हैं, इसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया, या बनिया, ए बेटे, इन कदर का अगर तू इस बात की ताकत रखता है कि तू रात इस हाल में गुजारे, तेरे दिल में किसी का खोट ना हो, तेरे दिल में किसी के खिलाफ कोई प्लान ना हो, तो ऐसा जो ऐसा करेगा ये मेरी सुन्नत है। किसी का बुग़्ज़ दिल में ना रखें, जिनका बुग़्ज़ रखना है उनका रखें, जिनका नहीं रखना है उनका बुग़्ज़ दिल में ना रखें। मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत के साथ मोहब्बत की उसने मेरे साथ मोहब्बत की। और यह हदीस का अगला हिस्सा है। इस पिछले हिस्से में फरमाया कि दूसरे के मुतालिक दिल में कोई खोट मत रखो, कोई बदनीयती मत रखो, बुग़्ज़ मत रखो, हसद मत रखो, कीना मत रखो। इसको यानी हसद से पाक रखना अपने दिल को, इसको कोई सुन्नत समझता ही नहीं। अपने दिलों को हसद से पाक करो। कुरान करीम में हसद की ममानियत, मुज़म्मत बयान की गई। हदीस पाक में हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह लकड़ी को आग हजम कर जाती है। और हसद सिवाय जलन, सिवाय वावेला, सिवाय हाथों के मलने के सिवा कुछ नसीब नहीं होता। इसलिए फरमाया
हासिद को सिवाय अफसोस के कोई चीज हासिल नहीं होती। उलमा ने लिखा है क्योंकि हसद करने वाले वो मुख्तलिफ असबाब होते हैं हसद के। कभी इल्म से हसद होता है, कभी तकवे से हसद होता है, कभी दौलत, कोई माल दौलत अल्लाह ने दे दी उसकी वजह से हसद पैदा होता है। तो हसद के मुख्तलिफ असबाब हैं। मुख्तलिफ असबाब के जरिए इंसान दूसरे के साथ हसद करता है। तो जिस तरीके से भी आप हसद करें उससे अपने दिल को पाक रखने का हुक्म दिया गया और फरमाया यह मेरी सुन्नत है। मन अहब्बा सुन्नती फकत अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत के साथ मोहब्बत की उसने नबी के साथ मोहब्बत की। मन अहब्बनी कान माइया फिल जन्ना, जो मेरे साथ मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। उलमा ने लिखा है हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम साहब के हासिदीन बहुत ज्यादा थे क्योंकि इमाम साहब का इल्म भी बेमिसाल था, फ़क़ाहत बेमिसाल थी, तक़वा बेमिसाल था, तो हासिदीन भी बहुत ज्यादा थे। आपने सुना होगा कि इमाम साहब के मुताल्लिक कुछ लोग ये बात कहते हैं कि इमाम साहब को अहादीस के साथ कोई उतना लगाव नहीं था, हदीस के इल्म उनके पास उतना ज्यादा नहीं था, उनको तो सिर्फ 3 हदीसें याद थी। ये आपने सुना होगा। लेकिन लिखने वालों ने लिखा है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा है और पास में एक शख्स बैठे हैं और ऊपर से एक बर्तन गिरा और वो पास में बैठने वाले के सर में लगा और वो शख्स जख्मी हो गया। और अहले इल्म है, उनको मालूम है दियत का जो हुक्म है किताबों में, वो जख्मों की दियत भी होती है। तो वो जो जख्मी हुआ तो इमाम साहब ने उनसे कहा आप इस जख्म की दियत पर राजी हो या इस जख्म जो आपको चोट लगी है इसके इवज में मैं आपको इरशादात नबवी सुना दूं। तो उन्होंने कहा मैं दियत लेना पसंद नहीं करता, मुझे रसूलुल्लाह का फरमान सुना दीजिए। तो इमाम साहब ने एक मजलिस में उस जख्म की दियत के इवज में उसी मजलिस में बैठे बैठे 300 हदीसें उनको सुना दी और हासिदीन ने उसको नकल किया, उनको 3 हदीसें याद थी। क्योंकि कभी इल्म हसद का सबब बन जाता है और हासिदीन को सिफाए हसद के कुछ नसीब नहीं होता। उलमा लिखते हैं बादशाह के पास वजीर बैठा है और एक शायर आया, उसने बादशाह की शान में कुछ कसीदा पढ़ा। बादशाह अजीब किस्म के लोग होते हैं, जो ही उसकी तारीफ की तो उसने कहा भाई इसको 10 दिरहम दे दो, इनाम दे दो। वजीर हासिद था, उसने कहा ये दिरहम तो मुझे मिलने चाहिए, ये क्यों ले गया? तो उसने कहा बादशाह सलामत, ये अशआर इसने खुद नहीं बनाए, ये फलां के अशआर इन्होंने आप अपनी तरफ मंसूब करके आपकी शान में गुनगुना दिए हैं, ये तो पैसा मैं इनसे ये दिरहम वापस लूंगा। उन्होंने कहा मेरी शान के खिलाफ है, मैं किसी को कुछ दे दूं फिर वापस लूं। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो मैं तो वापस लूंगा। उसने कहा मेरा एक सवाल है, अगर उसका जवाब इस शायर ने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो ये दिरहम वापस। तो उसने कहा करो सवाल। तो उसने कहा ये बता शायर, ये बता तेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं? आपके हैं? देख लें, बल्कि यहां दमाल में हो हैं किसी के? ये कोई सवाल था? हसद जब अंदर भड़कता है ना, फिर वो ऐसे अंधे सवालात करवाता है। तो उन्होंने कहा आपकी हथेलियों पर नहीं, ये बता बादशाह सलामत की हथेली पर बाल क्यों नहीं? वो शायर भी शायर था, उसने कहा बादशाह इतना सखी है, सखावत करते करते बाल झड़ गए। बादशाह और खुश हुआ, 10 दिरहम और दे दिए। वो फिर जलने लगा, उसने कहा बादशाह सलामत ये बहुत रकम ले गया, मैं तो मेरा एक सवाल और बाकी है, मैं तो इससे और सवाल करूंगा, ये रकम मुझे वापस लेनी है। तो उसने कहा करो सवाल। उसने कहा शायर ये बता तेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं?
उसने कहा जब बादशाह सलामत जैसे सखी देते रहे, उनके देते देते जड़ गए, मेरे जैसों के लेते लेते जड़ गए। बादशाह और खुश हुआ, 10 दिरहम और दे दिए। वो फिर चलने लगा। उसने कहा बादशाह सलामत अभी एक सवाल मेरा बाकी है, उसका जवाब अगर दे दिया तो ठीक है, वरना मैं ये सारी रकम वापस लूंगा। उसने कहा करो सवाल। उसने कहा ठीक है, ये बता मेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत इतना सखी सखावत करते करते बाल झड़ गए, मेरे लेते लेते झड़ गए, और आपके अफसोस से मलते मलते झड़ गए। बादशाह और खुश हुआ और 10 दिरहम दे दिए। तो हासिदीन को सिवाय हाथों के मलने के और कुछ नसीब नहीं होता। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लम हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु को खास तौर पर फरमाते हैं, अपने दिल को कीने बुग़्ज़ हसद से पाक रखो, यह मेरी सुन्नत है। मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, मन अहब्बनी कान माइया फिल जन्ना। इस सुन्नत को कौन जिंदा करे? इस सुन्नत की फिक्र कौन करे? इस सुन्नत की तरफ तवज्जो कौन करे? अहलुल्लाह जब आते हैं वो दिल के अंदर से ये दिल की बीमारियों को खुरद खुरद कर निकालते हैं, हसद को निकालते हैं, बुग़्ज़ को निकालते हैं, और अंदर की बीमारियां जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा तज़किया किया, शिर्क से पाक किया। औलिया अल्लाह दिल को शिर्क से पाक करते हैं। औलिया अल्लाह के नाम पर शिर्क किया जा रहा है। औलिया अल्लाह के नाम को बेच बेच कर अपनी कोठी और बंगले और अपने ओहदे चमकाए जा रहे हैं। औलिया अल्लाह ने लोगों का ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ा है, और जो वली अल्लाह के साथ लोगों को ना जोड़े वो वली हो नहीं सकता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके मुतालिक लिखा है उलमा ने, आज तो हर जगह तवाफ होता है नहीं होता? कब्र का तवाफ, मजार का तवाफ, कुर्सी का तवाफ, पत्थर का तवाफ, न मालूम किस किस का तवाफ होता है। हजरत बस मैं ये आखिरी बात कह के मैं बात खत्म करता हूं। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक शख्स ने कसम खाई, मैं ऐसी इबादत करूंगा कि रोए जमीन का कोई मुसलमान मर्द, कोई औरत, कोई बच्चा, कोई जवान उस इबादत में मेरे साथ शरीक नहीं होगा। अगर ऐसी इबादत ना कर सकूं तो बीवी पर तलाक है। कसम तो खा लेते हैं, बाद में तो पछताते हैं किया, फिर जाकर कहते हैं मौलवी साहब दीन बहुत वसी है, अब थोड़ा सा वर्क पलट दो, हमारे लिए सहूलत। पहले 3 तलाकें दे दी, फिर कहता मौलवी साहब ये दीन को मौलवियों ने तंग किया, दीन तो अल्लाह का बहुत वसी है, कुछ करो कुछ करो। तो कसम खा ली। हजरत तमाम मुफ्तियों के दरवाजों पर गए और उनसे मसला पूछा, उन्होंने कहा तलाक वाक़ई होगी। आखिर में हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे तो हजरत शेख ने फरमाया अभी बेगम हाथ से नहीं निकली, अभी बेगम को बचाने का एक नुस्खा अभी मौजूद है, अगर वो काम आप कर लें तो आपकी बीवी पर तलाक वाक़ई नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा क्या करें? कहा अगर तिलावत करता हूं तो दुनिया में कितने तिलावत करने वाले होंगे, नमाज शुरू करता हूं तो कितने अल्लाह के बंदे नमाज पढ़ते होंगे, सदका खैरात करता हूं तो कितने अल्लाह के बंदे और बंदियां खैरात